If you were to buy maybe a watch, mobile, some property, or maybe car, so what would be your parameters to consider to buy out anything? So you, to my understanding, you would be comparing the features, specifications, warranty, guarantee, colors, brand value, and all that. But how do you compare between two chartered accountant, between two company secretary, between two doctors, between two lawyers? So what are your parameters? You may at times feel, no, this guy has more experience, so he is valued more. But then we have maybe one advocate with 10 years of standing earning more than a CR, and maybe with other advocate with 25, 30 years of standing not earning a lakh. So is the experience the qualifying criteria? To my understanding, the answer is no. To my understanding, there are mainly three pillars, wherein the professional integrity of standing or the price that he command is dependent upon. The first one, from where did he attain that qualification, be it professional qualification, and how he was there in the studies. The second pillar, from initial 5-10 years, where did he had that grooming, which all firms or which all institution he worked in. And the third is the main pillar, which is his independent legacy, that whom he is serving, and what is the repeat ratio, and what orders or maybe whatever transaction he has done during that lifetime. So these are the three main pillars. And good morning, Pragati members and visitors. Now I start my presentation. So this is me. 2007 I did my schooling. I was second class, and 7 to 14 I did 4 curriculums. For a law you need only 1 degree. I've also done CS with, and qualifying in CS is 50%, wherein I scored 60%. And because of those degrees, I could get entry to the best law firm in the consulting firm. It is same that some doctor is saying that he is a product of AIMS, or some management consultant is saying that he is product of McKinsey. So to the world, it means, boss, I was the best, and therefore these institutions have taken me, because they pay the best and they take the best. And even despite of that, I cater into 3 line of services only, mainly. At this juncture, it might be that some people may be thinking कि boss तुम्हारा एक डील है क्या? मेरे पास तो मेरी चाची का लड़का है, उसने CCS से लॉ करी है, कहीं कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं, काम वो सारे कर लेता है, और तुम्हें बस 3 ही काम आते हैं. तो मैं यही अपना डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बोलूंगा कि मैं 7 साल के अनुभव, 12 साल के काम के बाद भी 3 ही लाइन सर्विस करता हूं, मैं सब कुछ करता ही नहीं हूं. तो पहली है, and for that, even for that line of services, there are 6 mentors who are, some are High Court retired judge, and even in my last, like, I've been part of 10 years, I've been working with law firms, and 2 of my seniors, one is in NCLT, he is presiding as a judge, and one in High Court, he is a judge. I cannot, like, so they're also there, like, most of the people not know that most of the people who are in High Court or Supreme Court are directly elevated. It is not that coming from the judiciary line of service. So, and these are the 3 line of service. First is contract drafting, negotiation. You talk about any contract, be it simple employment agreement, to franchisee agreement, to technological transfer agreement, to master service agreement. I am competent to do it all. And second is transactional work, which include IBC, private equity, joint venture, MNC, IBC, and all these matters. You might have heard the term, boss, चाचा इसके साथ मैंने धंधा किया था, उसने धंधा किया था साथ में, पार्टनरशिप में था, वो सब हड़प के चला गया. तो भाई हड़पने क्यों दिया? आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन करानी थी. जो भी प्रॉपर्टी थी वो पार्टनरशिप डीड के, अगर पार्टनरशिप में था तो पहले डीड को रजिस्टर कराना था, उसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट लिखना था, और प्रॉपर्टी सारी पार्टनरशिप फर्म के नाम पे होनी थी. तो पीपल बाय लार्ज दे डोंट appreciate that you need the right professional at the beginning, not when the something gone has happened. The third is corporate commercial litigation. आप सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, आप धंधा कर रहे हो कि भाई मैंने गुड एंड सर्विस दिए, हर बार पेमेंट आई है. ऐसा हो ही नहीं सकता. कई बार होता है आप गुड एंड सर्विस देते हो, फिर आप फॉलोअप ले रहे हो, पार्टी गायब है जी, आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया. आप क्या करो? आपको लगता है कि यार वकील के पास जाऊंगा, वो भी पैसे खाएगा, और मैं क्या करूं? तो आप कुछ भी नहीं करते हो. बायलाज तो छोटे एंटरप्रेन्योर कुछ भी नहीं करते. अगर आप दिल से माफ कर सकते हो तो माफ कर देना, नहीं तो मेरे पास आ जाना, मैं आपके पैसे रिकवर करा दूंगा.
So these are my people, like Tandon Saab, he was a High Court judge, CB Mauli, Rakesh ji and Ashish ji. If you walk to them directly, boss, उनके रेट मेरे से 10 गुना है. और आपको जरूरत नहीं होती हमेशा हाई प्रोफेशनल रखने की. मेरे पास क्या है कि जब मुझे उनकी एक्सपर्टीज की पर्सनल मतलब कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे जरूरत होती है तो मैं उसी में इन्वॉल्व करता हूँ, और उसी लिए नहीं तो एग्रीगेटली मैं ही कर रहा होता हूँ. और ये हर काम मैं खुद भी नहीं कर सकता. तो अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग चाहिए तो आपको एओआर चाहिए, अगर वैल्यूएशन का मैटर है तो कोई वैल्यूएशन एक्सपर्ट चाहिए, और जो मैं काम करता हूँ उसमें ये सब लोगों की जरूरत पड़ती है मुझे. और ये मेरी टीम है. आप देख रहे होगे 3 इसमें एडवोकेट हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी है. क्योंकि जो काम मैं करता हूं मैं कोशिश करता हूं कि बॉस मैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव दूं, उसमें टैक्सेशन एस्पेक्ट भी कवर करूं, स्टैम्प ड्यूटी भी करूं, और आपका कोशिश करूं कि एंड टू एंड ट्रांजैक्शन कर रहा हूं. ये नहीं कि अब ये तो तुमने मुझसे करवा लिया, बाकी तुम स्टैम्प ड्यूटी अपने आप देख लो, रजिस्टर्ड कराना है वो देख लेना. ये मेरे पास जो काम आ रहा है वो मैं एंड टू एंड करूंगा. और ये हमारी कोई भी आप सब लोग बिजनेस कर रहे हो, आपकी भी एस्पिरेशन ये होती होगी स्टार्टिंग में कि बॉस मेरे को लॉन्ग टर्म देखना है, मैं आपकी सक्सेस होगी तभी मेरी सक्सेस होगी. तो मेरी भी यही एस्पिरेशन होती है, क्योंकि आई एम फ्रॉम लास्ट टू 1.5 years आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस विद अ फर्म. सो मेरी भी यही सोच होती है कि बॉस सक्सेसफुल क्लाइंट ही आपको क्लाइंट लाएगा. और ये सिर्फ 1.5 साल के अंदर मैंने ये क्लाइंट करे हैं, विच इज माई गिव. आई कैन कनेक्ट यू टू दीज पीपल एंड दीज पीपल, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द फाउंडर्स और को फाउंडर. आई कैन कनेक्ट. मैं आस्क इज, देखिए लीगल की समझ थोड़े टाइम बाद आती है. आपको शुरुआत में ये लगता है कि सबसे सस्ता वकील है उसके पास ही जाओ. तो मेरी इसीलिए हमेशा होती है कि दरकार कि आप 10 करोड़ से ऊपर वाले धंधे, क्योंकि उसने टाइम तक वो आदमी समझ जाता है कि लीगल में मुझको एक बेसिक बंदा चाहिए ही चाहिए. एकदम कुछ बेकार से कुछ फायदा नहीं होगा, मेरे पैसे ही जा रहे हैं. तो दैट आई मेक श्योर. एंड दिस इज नाउ आई पुट इट टू. तो आप लोग सभी कुछ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होगा, कुछ होगा, तो क्या होता है जनरली क्या लोग क्या करते हैं, किसी ने कान में बोल दिया भाई तू अच्छा एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट बन रहा है, एनडीए भी बना ले. किसी ने कान में बोल दिया अरे तेरे पास पॉलिसी होनी चाहिए. स्मॉल एंटरप्रेन्योर पैसे बचाने के चक्कर में 10 पॉलिसी बना लेता है, दिखाना हो 10. ये भी मेरे पास है. ही इज वन ऑफ माय स्मॉलेस्ट क्लाइंट. मैंने कहा वो मेरे पास है कि यार मेरे पास एम्प्लॉई आता है, मैं उसको लैपटॉप देता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, कभी गायब हो जाता है, मैं क्या करूँ. मैंने कहा वो तो बाद की बात है, उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस लिख देंगे, मगर भाई तूने दुनिया भर के डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं. और फिर मैंने ये 7-8 डॉक्यूमेंट की जगह ये इनफैक्ट इतनी सारी पॉलिसी बनाई है. और काम की पॉलिसी, आप सब लोग भी बिजनेस चला रहे हो, आपको मैं ज्यादातर गारंटी के साथ बोल सकता हूं विसल ब्लोअर पॉलिसी नहीं बना रखी होगी, नहीं पोस्ट पॉलिसी होगी, जो कि मैंडेटरी है. और दुनिया भर की ये पॉलिसी बना रखी होंगी जिनका कोई फायदा ही नहीं है. और इसकी जगह हमने एक ही वो डॉक्यूमेंट बना दिया, और वर्ड डॉक्यूमेंट. सो दिस इज इंक्लूड एवरीथिंग. जस्ट स्क्रॉल डाउनवर्ड्स, आई विल नॉट हैव मच टाइम. सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड, एवरीथिंग इन वन डॉक्यूमेंट. एंड शुरुआत में मैंने उसको यही गाइड करा कि बॉस लिक्विडेटेड डैमेज, अगर तू मोबाइल लेता है, लैपटॉप देता है, कितना कल क्लेम करना है इसमें लिख देना और साइन करा लेना, तू बचा रहेगा. नहीं तो फिर कोर्ट भी यही देखेगी भाई कितने की वैल्यू था, तुम कुछ ले नहीं पाएगा. सेकंड लाइन ऑफ, प्लीज गो बैक टू द मेन. एंड सेकंड इज केस स्टडीज विंग्स फार्मा. ये स्प्लिट ऑफ हुआ था मेनली. ये नेटवर्थ थी 320 करोड़ की. चाहते वो भी एक सस्ता वकील रख सकते थे, मगर मैं उनके हिसाब से महंगा ही था, और इतना भी नहीं था जितना माथुर साहब बोलते हैं. तो मैं मतलब तो 320 के लिए उनको भी ठीक ठाक चाहिए था, क्योंकि कल डिस्प्यूट ना हो. एक सस्ता करके वहां 1-1.25 लाख बचा के आगे रायता फैल गया तो भैया संभालते हुए आपको बहुत टाइम लग जाता है. तीसरा ये सभी का पेन पॉइंट, इतने सारे क्लाइंट हैं उनके, तो क्या करें, किससे रिकवरी करनी है. 40 क्लाइंट है, मेरे को लिस्ट पकड़ा दी, इन सबसे मेरे को किसी से 1 लाख लेना है, 50 लाख लेना है, तो बताओ क्या करो. तो वो एक स्क्रूटनी करनी पड़ती है कि किससे क्या स्ट्रेटेजी करो, किस पे लीगल नोटिस भेजना है, कहाँ कॉमर्शियल कोर्ट में लगाना है, कहाँ एमएसएमई में लगाना है. आपको पहले देखना पड़ता है. व्हाई चूज अस? बॉस आई मेक श्योर आई एम गिविंग यू कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस. वी विल मेक श्योर दैट वी आर गिविंग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी. इट इज नॉट चीप, best value for money. And these are few testimonial, and beyond that more testimonial are there on my LinkedIn profile. I would like to remove some myth. I have some, I think 1 minute. So time over. Okay, thanks. Myth, for myth you have my R2B. Thanks for time.